And with this, we would like to move to the next session. We have Ms. Zafreen Chaudhary, Chief of Communication, Advocacy and Partnerships, UNICEF India, who has joined us online. We have Mr. Pankaj Pachauri, founder and media editor, Go News, and former media advisor to the Prime Minister. I would like to request him to please come on stage. Ms. Farhat Rizvi, Senior Journalist and General Secretary, Progressive Writers Association. Ms. Rizvi is a well-known journalist. Students are requested to please take their seats. Please, वापस आ जाइए. Please ask everyone to take their seats. Ms. Farhat Rizvi is a well-known journalist having more than 30 years of experience in print and electronic media, and she's associated with the Progressive Writers Association. She's the General Secretary and Senior Journalist. Ms. Sumaira Khan, Senior TV Anchor, TV9 Bharatvarsh. Kindly come on stage. Ms. Sumaira Khan. Dr. M.H. Ghazali, Editor, Urdu News Network. He's been associated with UNICEF's work for a long time. And Dr. Amina Tehseen, Head of Department, Women's Studies, Manu. We have amongst us a number of renowned journalists also who have joined us today, and I would like to request them to participate from where they are when we do this panel discussion on child rights, sports and gender issues, which is one of the main topics that we are focusing on Children's Day this time. Now I would like to request Ms. Zafreen Chaudhary to give her keynote address. Oh, so you have time. You can breathe easy. Ms. Zafreen, please. I know. Ms. Zafreen, we can't hear you. Yes, Sonia. Yes. Thank you, Sonia. Can you hear me now? Yes, we can. Okay, thank you. Namaskar, Assalamu alaikum, and good afternoon. Ladies and gentlemen, and all who are present, welcome to the panel discussion on gender and child rights in the context of the role of the media. My warm welcome and sincere thanks to Professor Ihtisham Ahmed Khan, Dean, School of Mass Communication and Journalism, Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, Dr. Amina Tehseen, Head of the Department, Women's Studies and in Manu, and all students. For the interest of time, I'm not mentioning all the names of the panelists, but dear panelists, take my regards. Very happy that you could join. It's an eminent panel, and we are very happy that you have, taken time out on a Sunday in the weekend to be with us. So, thank you for hosting this session. It's a very important session on gender and child rights and the role of the media. This is a part of the International Conference on Urdu Media, Past, Present and Future, and Urdu Media Summit. At the outset, I would like to convey, on behalf of UNICEF, our heartiest congratulations on the completion of 200 years of Urdu journalism. This is a rich and proud history, and we are very happy to be working with you and partnering with you. Welcome and, warm greetings to everyone, including my UNICEF colleagues and the media, friends and colleagues from the media. Today's discussion, as you would know, is on the eve of National Children's Week and National Children's Day, and
which is running up to World Children's Day. National Children's Day is tomorrow, 14th of November. It's running up to 20th of November for the entire week. And so it is a very special time for us. It's not that we talk about child rights only in this week. We uphold and advance child rights all days, weeks, and months of the year. This is our core, work, and this is what we are, all our work and partnership are based on. However, this week is a week which is like a crescendo. This is the highest, point, a very prominent point where we uphold and advance child rights and discuss important issues with our partners like yourselves, share creative public messaging for awareness, for progressive realization of child rights for every child in India. Non-discrimination is a core principle of the Convention on the Rights of the Child, which is commonly known as CRC or UNCRC. So the theme for this year's World Children's Day and Children's Week is non-discrimination and promoting unity, and particularly sports as an enabling force of inclusiveness, and how sports is a great unifier and how it promotes non-discrimination and lets everybody join and play on a level playing field on the base of equality. In the spectrum of inclusion, gender is the biggest determinant of inclusive child rights and development. I mean, if you think about it, we are talking about half of the humanity, half of all the children there are in the world, boys and girls, men and women. It is even unimaginable that at this time and day and the era, we are talking about the concept of equality and non-discrimination against half of the humanity. It kind of defeats the logic. We should not be even having to talk about it, but this is where we are, and we have made a lot of progress, but we have a long way to go. So, being a Bengali myself, I can't help refer to two lines from সাম্যবাদ, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর. Anybody who would know who's this সাম্যবাদী কবি, who's this poet of these lines? Any volunteers? Students? Okay, this is Qazi Nazrul Islam, and his very famous poem. So I'm not going to attempt translating it. Please, those who did not understand, look it up. It's a famous poem. It's about equality, and it was written in 1926. So this, strive for equality has been there for a long time, way before centuries, and we are still addressing it. The importance of inclusiveness, gender is a key one, as I said. It also applies for children with disability, children living in poverty, and children's right to be treated equally and inclusively, irrespective of their race, religion, caste, culture, sexual orientation, geographical marginalization. Some of these factors are, really drivers of alienation and exclusion, and that is what we need to be very, very aware of. So this week is an opportunity for us,
through August discussions like this, having, eminent speakers around us. So it's not UNICEF only, it's, the partners in India, because we are working for, for and in India as UNICEF India. So all these creative productions, messaging, consultations, discussions are leading to breaking the gender stereotypes, and and really for every child, for every young person to reach that point of equality, when we appreciate that we are all on the have the same opportunity whoever we are and wherever we come from. So you will see through this week some of our productions that girls across India, from remote parts of India, some of them are breaking gender stereotypes by excelling in so-called men's sports or boys' sports like boxing, like cricket, like football. So there will be a lot of those inspiring stories that we are working on. And it is also shows the spirit and power of sports in changing lives. I mean, sports is an entry point. It is not, the message is not that the sports only will promote, non-discrimination and inclusion. But sports shows the way that we need to broaden and take to all other, all other walks of life. Yes. So gender-based discrimination and inequality, I don't have to, say this, you would know, has a lifelong consequences for women and men, not only women. It also impacts the whole society. Childhood and adolescence are critical life stages when girls and boys, really internalize the unequal and harmful social and gender norms. So we really need to start early in that socialization, in that education, and really, promote those mindsets. UNICEF India is embarking on a new country program. We work with the government of India and other partners on a 5-year basis. So this is the 73rd year of our journey in India. And we are embarking on a new country program from 2023 to 2027. This is kicking off this January. It's already, it will roll out. So we learn from our past programming, past advocacy, past work, and then we take it forward. So that is how it works. Even though gender has been a core part of our discourse and our work for a long time, has always been, however, we have adopted gender transformative approaches as a key cross-cutting theme for the new country program, along with equity, to make it even more pronounced and stronger in all we do, to ensure that every program not only has a deliberate, gender inclusive and gender transformative approach in everything we do. So it is a continuum. We talked about gender equality, gender balance, gender inclusiveness for a long time. We are moving up on that spectrum by inventing and applying gender transformative approaches. We have talked about equality a lot of the time. Equality is, of course, it has to be there, but we need to be now really accelerating the program so that there is gender transformative tools and programming structures that are available that we apply, and that is more forceful, more forward-looking. So that's what we are doing. UNICEF has collaborated
for your information, with the International Cricket Council to promote gender equity through sports and development, and developed a curriculum around 8 gender-based life skills that are vital for enabling gender equity. One of the examples, of the many examples that we are working on, and we want to expand this. So this theme is being promoted during ongoing Men's T20 World Cup, and ICC is encouraging member of their boards to amplify the partnership through their official channels. It's not a mere coincidence that Board of Control for Cricket in India, BCCI, in an historic move, announced equal pay for centrally contracted men and women Indian cricketers. It's a really significant one. And this is the result of a collective hard work for gender equity and gender transformation. So this entire week, we will be working to raise awareness on the issues through different platforms. On 18th November, hundreds of children will have the opportunity to play with UNICEF Goodwill Ambassadors. During the quiz, you have heard the name of Sachin Tendulkar. He will be there. Grammy Award-winning Ricky Cage. He has, composed a song which, we will be performing there. There will be Ayushman Khurrana, who's the, actor and celebrity advocate for UNICEF. So children will interact with these players, play a friendly match, to send strong message on equality and inclusiveness through sports. And there is a session with parliamentarians this week also, where children will present a charter of demand. And last year's in the COVID, they talked about learning crisis. So we'll also take stock on how far we are moving, how strongly we are moving for learning recovery. And then from iconic buildings to remote villages will go blue. This is a symbolic one. Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Qutub Minar, Howrah Bridge, and also, remote schools, villages in Madhya Pradesh. So those will be turned blue to send the message on child rights. So India has made progress, more than half the prevalence of child marriage in the last decade, and there is continued investment being made on girls' education to ensure that we are on track on SDGs. We will achieve. It's a long way, but if we make progress step by step, the journey of it at the cost of being, sounding cliched, the journey of 1,000 miles starts with the, one step. And we are not on the first step. We have come a long way, but we acknowledge that we have to go a long way. And so it is really, a great opportunity for us to be among, so many journalists, our very eminent panelists, media professionals, students. I urge you to use all your channels, all your avenues, all your platforms to please this week to accelerate awareness on this issue, on child rights, on gender, on inclusiveness, on the importance of equality and equal opportunities. Of course, you are our partners and friends and allies. You will do it all year, and we will not stop here in the Child Rights Week. We will continue. But this is, as I said, it's a crescendo. So we need to raise our voice in unison. We need to make it big and so that people listen. With that, a big thank you to all of you once again for joining the panel and a gathering for this important issue. I wish you and us
a big success with not only the messaging and reaching, but even if we make, some changes one day at a time, we will get there sooner or later. If we don't, as my generation, the next generation, our children, our students will get there. Thank you very much. Thank you, Zafreen. And with this, we have Professor Ehtesham Ji who is here. I would like to request, since Professor Ehtesham Ji is here, if he can speak a few words in terms of this gathering which is present today and how we are speaking about the role of media, gender and sports. Thank you, ma'am. Good afternoon. Assalamu alaikum. I welcome to all UNICEF staff members and students and dear panelists who is participating in this panel discussion. This is a great opportunity that we are celebrating bicentenary celebration of Urdu journalism along with child rights, gender equity, and sports. And the role of media in raising the child right issues, gender equity, and gender issues. First of all, I am thankful to Madam Sonia Sarkar ma'am for giving all support to organize this event and having a MOU since 2018 for our Urdu journalism students to have health journalism course specific, which has been designed specific to the CAS critical appraisal skill, and for creating health awareness among the people who are still a country like India where the health is not being covered properly in newspapers and TV channels. This session is very special because here we are going to talk about child rights, gender equity, and the role of media. We have very eminent panelists, Mr. Pankaj Pachori sir, who is a very senior and very eminent journalist and one of the main partner of UNICEF in promoting the child immunization scheme and health awareness scheme. I also welcome Madam Farhat Rizvi ma'am, Mohtarma Farhat Rizvi ma'am, who is also very senior journalist, and also she is she's the General Secretary of the Progressive Writer Association. Then we have Dr. Amina Tehseen ma'am, who is the head of Women Studies, Department of Women Studies, Maulana Azad National Urdu University. Ma'am, I also welcome you. Then we have very senior journalist, Dr. M.H. Ghazali, who is also very eminent person of the UNICEF in promoting so many activities across India pertaining to health journalism as well as other gender and child right issues. Now we have one of my very good friend, Madam Sumaira Khan, who is my junior at Aligarh since only 1 year gap, and she is now working as an executive editor at TV9 Bharatvarsh. I welcome you also, Sumaira. And we have very eminent journalist, Mr. Rahul Srivastava, who is national editor of Headlines Today and Delhi. And then we have Madam Shahira ma'am, who is a health gender expert from Lucknow, and she has been earlier working with so many reputed newspapers. And Sonia ma'am is always having a very busy schedule, but she's how I am sometimes afraid that how she is managing so many seminars, workshops at same time at various places. And she is the communication officer at UNICEF, who is one of the
She is playing the pioneer role. Yeah. And actually, I forget to mention the first Ms. Jafreen Chaudhary, ma'am, who is the Chief of Communication, Advocacy and Partnership, UNICEF India. Ma'am, I welcome you, and on the behalf of the Department of Mass Communication and Journalism, Maulana Azad National Urdu University, for giving this a wonderful opportunity for the students to participate in the role of media for raising the issues of discrimination and how the child rights may be strengthened in our country, and the issues of gender, which you are talking earlier in the welcome remarks. This workshop, I hope that will enlighten our students and the people who are really wanted to work with child rights and gender equity. We have also Mr. Azam Shahi Saab from Bangalore, who is also one of the prominent journalists from Urdu media, who is regularly writing for different newspapers regularly. Ma'am, welcome again for this wonderful occasion to collaborate with our bicentenary celebration and with your all support, kind support. We have this wonderful celebration for Urdu journalism when it is completing 200 years. And we also have one of the important person in the quiz show, Mr. Srinjoy Roy, who is having just quiz show for the students, which has just concluded just 10 minutes back. I also thankful for him and other students who are here present and have taken interest in participating the quiz show and to listen this panel discussion. Thank you for. Thank you, Professor Ehtesham. And with this, we will move to the panel discussion. And our first question is to Mr. Pankaj Pachauri. How do you think we can mainstream gender issues in the media? Media अपना role निभा रही है, but is it highlighting the issues enough? This is our first question to you, Mr. Pankaj. Thank you. I thought it will be a quiz, so there will be faster questions and faster answers. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और यूनिसेफ का, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर एहतेशाम, Madam Chaudhary from UNICEF, and all the staff and all the old friends which I've known for many decades, some sitting in the back where they can hear us, and all of you sitting here at the dais with me. How to increase the gender sensitivity, the role of health reporting, children and media. In 1989, I got an award for the Statesman Award for Rural Reporting on a story on female infanticide in Rajasthan. Now, I had a lot of lessons from that story. And number one was that the role of media is not just in highlighting the gender issues. Female infanticide is as sensitive a gender issue in India as it gets. मैं हिंदी में बात करूँगा थोड़ा और ज़्यादा. तो भ्रूण हत्या का ये मामला था, लेकिन हम भ्रूण हत्या की स्टोरी करने नहीं गए थे. हम स्टोरी वहाँ पे जो करने गए थे वो ये करने गए थे कि जोधपुर के दूर दराज के जो गांव हैं उनमें गरीबी कितनी है, और वो स्टोरी हम कर रहे थे. तब हमें मालूम पड़ा कि एक गांव ऐसा है कि जिसमें एक भी बच्ची नहीं है, क्योंकि बच्चियों की हत्या कर दी जाती है जैसी वो पैदा होती हैं. तो पूरे गांव में एक भी स्कूल नहीं था और वहाँ पर बारात नहीं जाती थी. तो उसका गांव का नाम ही ऐसा बन गया था कि बारात नहीं जाती यहाँ पर. और तब हमें मालूम पड़ा कि ये गांव है तो इस पर भी स्टोरी करते हैं. तो उसके ऊपर जो स्टोरी की तो उससे ये मालूम पड़ा कि दो तीन चीज़ें सामने उसमें आई. एक तो ये आई कि पूरा जो पब्लिक हेल्थ
का एक्सपेंडिचर गांव पर था वो पर कैपिटा पड़ता था 17 रुपये, सिर्फ 17 रुपये। और उस समय 17-20 रुपये का एक पेन आया करता था प्लास्टिक का, तो वो हमने किया। और फिर आगे बढ़े तो हमने ये किया थी कि उस गांव में कोई सड़क नहीं थी, और सड़क थी वो 20-30 किलोमीटर दूर थी, और उस गांव के लोग बिल्कुल कटे थे, जुदा थे पूरी दुनिया से, और उनको यही नहीं मालूम था कि बाहर होता क्या है। तो वहाँ पर जो दाई थी, हमने दाई का इंटरव्यू किया, जिसको हम आजकल आशा कहते हैं, और उसने ये बोला कि यहाँ तो यही है प्रथा और यही चली आ रही है और यही होता है, इसमें कुछ आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है इस बात के ऊपर। तो 2-3 चीज़ें निकल के आई। एक तो ये निकल के आया कि हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो ना के बराबर है, हमारी कनेक्टिविटी उस गांव से बिल्कुल ना के बराबर थी, और साथ ही बाकी मुल्क में महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितनी आगे वो बढ़ गई हैं। लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि इंदिरा गांधी इस मुल्क की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। सिर्फ एक टीचर जो वहाँ पर था स्कूल का, उसे मालूम पड़ा। और अच्छी बात ये मालूम पड़ी कि सिर्फ वो टीचर था जिसके पास में 2 लड़कियाँ थीं। उस पूरे गांव में सिर्फ 2 लड़कियाँ थीं, वो टीचर के पास थी, और क्योंकि वो टीचर पढ़ के बाहर से जयपुर से गया था कहीं से, इसलिए वो था। तो अवेयरनेस नहीं थी गांव में, डेवलपमेंट नहीं था गांव में, और गांव में मोटिवेशन नहीं था उस चीज़ों को ठीक करने का। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि 3 साल बाद 1992 में मुझे एक फ़ोन आया, जब मैं हिंदुस्तान में काम नहीं करता था, BBC लंदन में काम करता था। फ़ोन आया, और वो फ़ोन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का था, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि पंकज जी, हमने आपके गांव में एक बस लगा दी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हम आपके गांव में एक बस लगा दी है। अब वो मेरा गांव हो गया, क्योंकि मुझको अवार्ड मिल गया इतना बड़ा, और उसे लेके हंगामा हो गया और पूरी दुनिया में छप गया वो। तो उन्होंने एक बस लगा दी है, और वो एक बस सुबह जाती है और एक बस शाम को जाती है उसका। तो ये तो हो गई 79, 89 और 92। उसके 25 साल बाद जो हमारा कैमरा पर्सन था हमारे साथ में, इंडिया टुडे का प्रशांत पंजियार, उनका मुझे फ़ोन आया कि पंकज, वो गांव के प्रधान ने हमें बुलाया है, वहाँ पर पहली बार बारात जा रही है। आप समझ सकते हैं कि एक पूरी जनरेशन लगती है इन चीज़ों को ठीक करने में। और फिर अब 40 साल के आसपास उस बात को होने वाले हैं, और अब फिर वो प्रशांत पंजियार ने अभी किताब लिखी है, उसमें इसका जिक्र किया है और बोला कि हमें उस गांव वापस जाना चाहिए, वहाँ के लोग हमें फ़ोन करते हैं। तो 3 चीज़ें हमने वहाँ से हटा दी। जो अवेयरनेस नहीं थी वो अवेयरनेस वहाँ पहुँच गई, जो वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी थी, जो कनेक्टिविटी नहीं थी, वो कनेक्टिविटी वहाँ पर ख़त्म हो गई। और लड़कियाँ क्या कर सकती हैं समाज में, सिर्फ बच्चे पैदा करने के अलावा, और वो भी सिर्फ लड़के पैदा करने के अलावा, ये उन लोगों में समझने की सलाहियत वहाँ पर आ गई। तो इतने सालों में वो गांव बदल गया, और उसके लेसन्स जो हैं वो हम इस जो हम बात कर रहे हैं आज जेंडर इक्वलिटी की या जेंडर सेंसिटाइजेशन की, और स्पोर्ट्स की कैसे हम उसको कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मुझे फिर फ़ोन आया सोनिया जी का वहाँ पर कि हम प्रियंका चोपड़ा को लखनऊ ले जा रहे हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे लोगों को ये मालूम पड़ सकता है कि एक तो लड़कियों की अहमियत क्या है। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार हैं, जो हॉलीवुड में काम करती हैं, और उससे आपको ये मालूम पड़ता है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के पास में इतनी कमिटमेंट है कि उस गांव के लिए अब बाकायदा कनेक्टिविटी है, वहाँ पर जाती है, लाइट वहाँ पर आ गई है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं। नेचुरली वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर वो भी बढ़ा है, और उस वजह से गांव में अब उसमें लड़कियां हैं। तो ये एक जो कहानी मैंने आपको बताई, थोड़ा सा वक्त मैंने आपका लिया कि, और इसलिए भी लिया कि इन सब चीज़ों में वक्त लगता है और कमिटमेंट लगता है। मैंने वो खबर इसलिए की थी, मैं नया यंग रिपोर्टर था, और अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। आजकल तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, 1-2 अवार्ड हुआ करते थे उन दिनों में।
मेरा मोटिवेशन वो था, मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं कैसे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाऊं जो उनको मालूम नहीं है, जिससे कि वो एकदम शॉक में आ जाएं। हम कहते हैं डॉग बाइट्स मैन इज़ नो न्यूज़ एंड मैन बाइट्स डॉग इज़ न्यूज़। तो ये वो मैन बाइट्स डॉग था कि ये हिंदुस्तान है जिसको हम हिंदुस्तान वाले नहीं जानते। तो इस तरह से अगर आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे और इस तरह से लोग बीच में ले जाएंगे, और उसमें स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स की क्विज़ जो है अभी ख़त्म हुई यहाँ पर, उसमें जो नाम आए अलग अलग, मीराबाई चानू का नाम आया, सोनाक्षी मलिक का नाम आया, ये वो लड़कियां हैं जो कि कल तक आप समझ सकते हैं कि सोनाक्षी मलिक की माँ का मैंने जब इंटरव्यू किया और वो विनेश फोगट की माँ का मैंने इंटरव्यू किया, वो इतना बड़ा घूंघट पहन के हमारे स्टूडियो में आई। तो मैंने कहा कि आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, पूरे परिवार को बुलाया हुआ था, 3 लड़कियों ने मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। और तो वो बोलती हैं कि मैंने कहा आप इनको जाने देती हैं ऐसे ही, ये तो ऐसे कपड़े पहनती हैं वहाँ पर, आप घूंघट खान के या काढ़ के बैठी हुई हैं स्टूडियो के अंदर। तो बोलती हैं वो उनकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है। तो पहली बार विनेश फोगट की माँ ने घूंघट तब उठाया स्टूडियो में जब मैंने कहा कि अगर आप घूंघट पहन के इंटरव्यू देंगी तो कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। तो ये जो अवेयरनेस है, अगर हम इसको बढ़ाएं कि क्या अचीव कर सकती हैं लड़कियाँ, और क्या जेंडर इंसेंसिटिविटी की वजह से 50% जो हमारा वर्क फोर्स है, ये मोटिवेशन है लोगों के लिए, वो बेकार पड़ा हुआ है। साउथ कोरिया में आप देख लीजिए जाकर के, वहाँ पर 72% के आसपास महिलाएं जो हैं वो वर्क फोर्स में हैं, हमारे यहाँ अभी 30% के आसपास पहुँची। और इस अवेयरनेस की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी तमाम तरह की जो परेशानियाँ जिनका हम सामना करते हैं, यूनिसेफ उनके लिए कैंपेन चलाता है, इम्यूनिटी की बात है, 21 मिलियन मेरे ख्याल में बच्चों को डोज नहीं लगी इम्यूनाइजेशन की, 21 मिलियन 3 मिलियन के आसपास डोज नहीं लग पाई इम्यूनाइजेशन की। तो अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि बच्चे के हेल्थ की कितनी ज़रूरत उनको है, और आगे बढ़ के वो बच्चे क्या कर सकते हैं। कोई सिल्वर मेडल जीत सकता है, कोई जो है वो टाइम मैगज़ीन में उस पर स्टोरी छप सकती है। तब तक हम लोग उन लोगों को जो मेन स्ट्रीम है, हमारी जो मुख्य धारा है हमारी ज़िंदगी की, हमारे दो मुल्क की, उसमें नहीं जोड़ पाएंगे। और नहीं जोड़ पाएंगे तो उसका असर वही होगा जो पहले था कि साउथ कोरिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और साउथ कोरिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो हम चाइना को कैसे पीछे छोड़ेंगे। और इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन मिस फरहत रिजवी, सीनियर जर्नलिस्ट, जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से पूछना चाहती हूँ। हमने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने फॉर द बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ उर्दू जर्नलिज्म में कहा है कि बहुत सारे महिलाएं आगे आ रही हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में। But before that, you also say that contribution of women in Urdu journalism has not been acknowledged much. तो कुछ steps आप बताइएगा, हमसे share करिए, positive steps taken by media and taken by Urdu media also for inclusion and bringing adolescent girls to the forefront. Media कैसे adolescent girls और उनके issues को forefront में लेके आ सकती है, अगर आप हमसे share करें। थैंक यू। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक शेयर करती हूँ मैं। आज जो एक न्यूज़ है, और ये चाइल्ड राइट और जेंडर इक्वलिटी दोनों से रिलेटेड है, कि शायद आपको पता ही हो कि आज नागपुर की अल्फिया पठान को अवार्ड, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है बॉक्सर चैम्पियनशिप में, और वो महाराष्ट्र की पहली बॉक्सर हैं। ये दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने उस जवाब पर आती हूँ कि मैंने उसका इसलिए ज़िक्र किया कि मैं 2016 से कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। मैं, हमारी एक मैगज़ीन थी बज़्म सहारा, तो उसके लिए सीरीज़ में आर्टिकल लिखती थी विमेन जो उसमें हैं, जर्नलिज्म में हैं, उन लोगों पर। तो उसमें अब वो देख रहे हैं कि उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो आज भी एक चीज़ उसमें ऐड हो गई, क्योंकि वो मुझे एक नाम इतने दिन से नहीं मिल रहा था। तो मैं जब भी देखती हूँ कि उर्दू सहाफ़त पर जो किताबें लिखी गई हैं, उसकी हिस्ट्री पर लिखी हैं, उसमें कहीं भी
वीमेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनका कोई नाम नहीं आया। मैंने जो बात कही थी उस वक्त भी और वो आर्टिकल भी दिया है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अमीन सयानी की माँ कुलसूम सयानी 20 साल तक एक उर्दू और देवनागरी में और गुजराती में 3 ज़बानों में मैगज़ीन निकालती रही, रहबर नाम का, उसका किसी किताब में जिक्र नहीं है। ऐसे ही तबस्सुम जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उनकी माँ ने तनवीर नाम का एक रिसाला निकाला। और मतलब जो बदनाम गलियां हैं, जो कोठे वालियां जिन्हें कहते हैं, उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को लेके दिल्ली और लाहौर में उन्होंने मैगज़ीन निकाले। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी कुछ शिकायतें थीं वो करती थीं, तो उसके लिए नहीं कॉरपोरेट में कुछ सुना गया, तो उन्होंने फिर मैगज़ीन निकाला, उसकी भी मजाक बनाई गई। लेकिन ये बहुत बड़ा हथियार होता है। तो बात हमें खुद ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अब आप उसका असर ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हो रहा है हम अपनी बात कह रहे हैं। तो पहले जो मार्च में जो सेंचुनरी के कुछ प्रोग्राम्स हुए, उसमें किसी औरत को नहीं बुलाया गया। तो मैंने फ़ोन करके भी कहा कि किसी प्लेटफॉर्म पर कोई औरत नहीं है क्या, काम नहीं करती हैं वो, और अगर कहीं कोई कमी है तो हमें बैठकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका ओरिएंटेशन हो। वो मैगज़ीन निकाल रही हैं, उनका कंटेंट हम सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो उनको इश्यूज़ बताएं, उनका ओरिएंटेशन हो, ये हो। उसके बाद अब बुलाने लगे हैं लोग। खैर, लेकिन एहतशाम साहब ने तो मार्च में ही मुझसे वादा किया था कि आपको आना है। लेकिन दूसरे और कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में हुआ, औरतों को किसी ने इनवाइट नहीं किया। लेकिन अब बुला रहे हैं, हम अपनी आवाज़ खुद ही पहुंचाएंगे तो वो होगी। तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। दूसरी, आपने सवाल तो नहीं किया, लेकिन मैं एक और अपना तजर्बा शेयर करती चलूं, क्योंकि चाइल्ड राइट की बात हो रही है। बहुत परेशानियां हैं किसी भी चीज़ में। हिंदुस्तान में हमारे पास बहुत सारे कानून बन गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन 2 वजह से नहीं होता है। एक तो लाल फीताशाही, वहाँ रुकावटें होती हैं, और दूसरा अवेयरनेस नहीं है, मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होगा तो हम उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, आगे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक मेट की बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो खुद ही बचपन में माँ बन गई, और आदमी तो जैसे होते हैं छोड़ छाड़ कर चला गया। तो 1097 एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पता भी है और इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये आता था, ये सुबह से शाम तक औरत काम करती है और झुग्गी झोपड़ी में बच्ची अकेली पड़ी रहती है, आसपास का क्या माहौल है, इसका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले ही जाकर, कोई इंट्यूशन थी कि उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया वहाँ जाकर। और हर जगह वीमेन थाने भी होते हैं, तो वो भी नहीं लोगों को पता होता। वहाँ पर भी जाके अपनी बात कह सकते हैं। 2-4 आपको गाली पड़ेगी लेकिन काम करेंगे। उसका फ़ायदा, एक पता नहीं क्या हुआ कि मैं तब हैदराबाद ही आ रही थी, और उसी रात पता लगा कि उस बच्ची का मॉलेस्टेशन हो गया। वो रेप होते होते बच गई। 7 साल की लड़की थी। उसकी माँ ने जब आके कहा तो वो रो रही थी बुरी तरह, और वो भी उम्र की बहुत कम थी। उसी टाइम मैं यहाँ आ गई, लेकिन यहीं से मैंने बात की और फ़ौरन मैंने फ़ोन वहीं पर किया कि उस बच्ची का मॉलेस्टेशन हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था नंबर। टीम वहाँ गई, पुलिस ने FIR की, उसका मेडिकल हुआ, और उसको फिर एक शेल्टर हाउस में ले गया। तब मुझे पता लगा कि दिल्ली में कितने शेल्टर हाउस हैं, कितने होम्स हैं। अब उन्हें ऑर्फेनेज भी नहीं कहते, 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ होम कहते हैं। मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट भी जाना पड़ा उसके लिए, जो सोशल कोर्ट होता है। रुकावटें आई, लेकिन 1.5 साल में उसको बहुत अच्छी जगह मिल गई। और अब वो 9 महीने अमेरिका में रहकर आई है बच्ची, आप उसको पहचान भी नहीं सकते। क्या फर्राटे की अंग्रेज़ी बोलती है, और 90% उसके मार्क्स आते हैं। तो अगर हमको बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हम मीडिया में उसका सही इस्तेमाल करें और इन्फॉर्म करें। रेलवे में औरतें सफ़र करती हैं, अगर अकेली हैं और आपके पास नंबर हैं रेलवे हेल्पलाइन के, कुछ भी हो जाता है तो आप उसको करें। तो ये अवेयरनेस समाज में लानी बहुत ज़रूरी है। और माइंडसेट भी थोड़ा पेरेंट्स का भी चेंज करना है कि वो लड़कियों के लिए अपना एटीट्यूड बदलें, बच्चों के लिए अपना एटीट्यूड बदलें। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन मिलेगी तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, सोशल पावर आएगी, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होंगी। थैंक यू वेरी मच। एक और पैनलिस्ट हैं सुमेरा खान।
TV9 से हैं। Sumaira, do you think children and gender issue attract good viewership? How can we ensure viewership attraction without being insensitive to the issue and still respect child rights? Is it working? Hello, is it working? Thank you for the question, Ghazali Sahab. I would say that children and gender issues do attract good viewership. But how many good stories do we carry? That is a big question. तो ये ज़रूर है कि जो चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जो जेंडर इश्यूज़ हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अच्छी व्यूअरशिप, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात हुई, उन सब पर बहुत अच्छी स्टोरीज़ हुई हैं, उनको बहुत अच्छा कवरेज मिला है, और फिर उसका हम असर भी देखते हैं सोसाइटी में, समाज में, चाहे वो मीराबाई चानू हो या बाकी और तमाम स्टोरीज़, या पंकज जी ने जिस स्टोरी का जिक्र किया वो एक माइलस्टोन था, और उसके बाद फिर उसके फील्ड में बहुत कुछ हुआ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम व्यूअरशिप हासिल करने के लिए बहुत से, जब हम पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो जेंडर इश्यूज़ में या अवेयरनेस फैलाने की अगर बात है कि आप कितना अवेयर कर रहे हैं लोगों को हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर या उनके राइट्स को लेकर, उस पर उतना काम नहीं होता है। लेकिन अगर अच्छी स्टोरी है जो कि कनेक्ट करती है लोगों के साथ, अगर वो विमेन से कनेक्टेड है, वो जेंडर से कनेक्टेड है या वो बच्चों से कनेक्टेड है, तो उसको ज़रूर व्यूअरशिप मिलती है। बट हाउ डू यू सेलेक्ट गुड स्टोरीज़ एंड हाउ डू यू इंश्योर कि वो अच्छी स्टोरी भी हो और उसको अच्छा कवरेज भी मिले, वो एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है। ये मैं नहीं इनकार करूँगी इस बात से कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ कैरी होती हैं जिसमें कि आप उतनी सेंसिटिविटी नहीं पाते हैं जेंडर इश्यूज़ को लेकर या चाइल्ड राइट्स को लेकर, लेकिन सबको हम एक तरह से नहीं देख सकते कि सभी उस तरह से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उस पर अच्छा काम भी हो रहा है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि हम अच्छी स्टोरीज़ को प्रोमिनेंस दें, और उसके बाद उस पर फिर समाज में आपको प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और अब तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि आप लंबी स्टोरी या बड़ी बात कह सकें, लेकिन छोटी स्टोरी, छोटी बात, वो उस तरह से कैसे कही जाए, वो उसकी व्यूअरशिप है, ऐसा नहीं है कि वो व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में नहीं वो स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सिलेक्टिव, बहुत कम तादाद में होती हैं। उनकी तादाद ज़रूर बढ़नी चाहिए, वो और वाइड स्प्रेड होना चाहिए, जो अभी नहीं है। थैंक यू सुमेरा जी। और इसी के साथ हम जैसे आपने बताया कि अगर छोटी छोटी स्टोरीज़ भी हम गर्ल्स की, चाइल्ड राइट्स की इंसर्ट कर लें न्यूज़ के अंदर या हमारे दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्टर अमीना तहसीन जी भी हैं, HOD वुमेन स्टडीज़ मानू। जाफरीन जी जब यहाँ पे आई थी मानू में लास्ट टाइम, तो शी वांटेड टू मीट यू, समहाउ वो मीटिंग नहीं हो पाया। तो डॉक्टर अमीना तहसीन, आपको एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि हाउ कैन वी एज अ कम्युनिटी मेन स्ट्रीम गर्ल्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली एज HOD women studies in Manu, how do you traditionally, for example, add sports in traditional studies that you are teaching so that these issues of science, technology and sports can be mainstreamed? थैंक यू सो मच मिस सोनिया सरकार। एक बात अपनी रखने से पहले मैं सबसे पहले तो यूनिसेफ को बहुत मुबारकबाद दूंगी। उसकी वजह ये है कि हम जो उर्दू मीडिया के 200 साला जश्न को यहाँ मना रहे हैं, इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव को जिस तरह से यूनिसेफ ने जगह दी है, ये इट्सेल्फ बताता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू या इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारे किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरह के प्रोग्राम्स में जेंडर पर्सपेक्टिव, जेंडर लेंस का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देती हूँ। बात जो सवाल आपने किया है उस पर
आने के लिए मैं 2 चीज़ें यहाँ पेश करूँगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास स्पोर्ट्स क्विज़ हुआ और विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स के इतने अहम नाम हमारे सामने आए, और वो एरियाज से जो एरियाज़ को मेल डोमिनेटेड या मेल स्पोर्ट्स एरियाज़ कहा जाता था, वेदर इट इज़ बॉक्सिंग है या एनीथिंग वी कैन इफ़ यू टेक, ये एक बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छी इमेज हिंदुस्तान की हमारे सामने आई। एट द सेम टाइम वहाँ बैठे बैठे मुझे एक शेर याद आ रहा था, इतना बोलोगी तो क्या सोचेंगे लोग, इतना बोलोगी तो क्या सोचेंगे लोग, रस्म यहाँ की ये है लड़की सीले होंठ। ये हिंदुस्तान की दूसरी तस्वीर है। इन 2 तस्वीरों के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, वो गैप पर हमें डिस्कस करना, उस गैप में जितने इश्यूज़ हैं जेंडर से रिलेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या पर्टिकुलरली डायनामिक्स ऑफ पैट्रियार्की जो है, उस पर हमें गौर करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम स्टेम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्लस स्पोर्ट्स में इंक्लूजन, गर्ल्स के इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हमें तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 में जो पब्लिश हुआ है, इसमें जो इंडिया का रैंक है 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये इटसेल्फ बताता है कि हाउ मच वी आर रेडी टू इंक्लूड आवर गर्ल्स इन स्पोर्ट्स, इन आर स्टेम अप्रोचेस, राइट। उसी तरह अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट लेते हैं तो हमको ये पता चलता है कि आज गर्ल चाइल्ड राइट्स आज भी, इवन इन 2022 भी, इवन जब हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कितने इंटरवेंशंस हैं, नेशनल इंटरवेंशंस हैं, इसके बावजूद भी आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आज भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में रुकावट बनती है, कॉन्स्टेंट पैदा करती है। इवन जो जो डायमेंशंस हैं या जो डायनामिक्स ऑफ पैट्रियार्की है, वो कैसे डिफरेंट वेज से अभी तक हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करती है। इसीलिए ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जब यूनिवर्सिटी में हमारे पास हम मास्टर्स इन वुमेन स्टडीज़ एंड पीएचडी इन वुमेन स्टडीज़ हम जब ऑफ़र करते हैं और बहुत सारा रिसर्च जब हम करते हैं, तो हमारे सामने वो रियलिटीज़ आती हैं। इवन हम उर्दू यूनिवर्सिटी में ये ऑफ़र कर रहे हैं, बट हमारे पास जो हम चूँकि हमारा नेशनल जुरिस्डिक्शन है और हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो रॉ आता है वो डिफरेंट स्टेट से आता है, वो डिफरेंट स्टेट से हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नो द प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज जो उन हिंड्रेंस हैं उनके दरमियान में, या उनको कैसे रोकते हैं, वो कैसे ओवरकम करके एटलीस्ट टू टेक एडमिशन इन BA, BCom। नाउ द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग इन BSc एज वेल। लेकिन जब हमने BSc स्टार्ट किया या पॉलिटेक्निक कोर्सेज स्टार्ट किए या हमने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, तो बहुत ज़ीरो लेवल था हमारे पार्टिसिपेशन का, विमेन पार्टिसिपेशन। बट स्लोली इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन जो इश्यूज़ हैं, वेदर इट इज़ वो अगर आप जैसे कि सर अभी फीमेल फिटिसाइड की बात कर रहे थे, तो इवन आज हिंदुस्तान में लड़कियां पैदा होने का हक भी खो दी हैं। जब वो पैदा हो भी जाती हैं तो फिर उसके बाद से उनका जो डिनाइल होता है राइट्स का, हर जगह फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। पॉवर्टी किस तरह से उन्हें हर जगह रोकती है, इसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। फिर जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो जेंडर नॉर्म्स हैं, जो पर्टिकुलरली मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनाइनिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस बन के इतना ज़्यादा हमारे फैमिली सिस्टम में है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब तक हम डिफरेंट लेवल्स पर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वेदर इट इज़ फैमिली सिस्टम, एजुकेशन, लॉ, रिलीजन एंड कल्चर, ये सारे मिलकर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो हम कम्युनिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम बात नहीं कर सकते। इसको हमको हर लेवल पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्पेशली
वो ग्रुप्स जो सोशल ग्रुप्स इंडिया के जो एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, बिकॉज वी आर सर्विंग टू दैट पीपल। हमारे पास जो आता है रहा वो पर्टिकुलर डिफरेंट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करना, उनको वो स्टेम स्ट्रीम्स तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज सिर्फ एक एजुकेशन के लेवल पर नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन हमारे जो मानो मॉडल स्कूल्स हैं, इवन इन हैदराबाद एक ऐसे एरिया में है जो वट्टेपल्ली एरिया ओल्ड सिटी का, जहाँ पर बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसके अतराफ में वहाँ हमने स्कूल कायम किया है। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स का खुद इटसेल्फ इतना दबाव होता था, इतना अपोजिशन होता था, अगर कुछ हो जाता, अगर बोलते लड़की को क्यों तुम ड्रॉप आउट कर रहे हो, क्योंकि 6th and 7th के बाद ड्रॉप आउट होता था। नाउ कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो अब 10th तक ड्रॉप आउट बहुत कम हो गया है। लाइक 50 गर्ल्स अगर टोटली ड्रॉप आउट होती थी, तो नाउ इट केम टू 20 to 25, एटलीस्ट 50% वी कंट्रोल दैट। तो ऐसे ही इंडिया की दूसरी स्कूल्स भी जहाँ पर हैं, उनके भी इशूज़ ये बताते हैं कि हमें अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गर्ल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो हमें बहुत डिफरेंट लेवल पर काम करना होगा। इवन हमें ये भी देखना होगा कि क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ इक्वली लड़कियों को भी दरकार हैं। लड़की घर वापस जाती है तो उसे माँ का साथ देना पड़ता है, और किसी स्कूल्स में अगर आप हैदराबाद का सर्वे कर लें तो हार्डली 10% स्कूल्स हैव दैट ग्राउंड्स टू प्ले। 90 or more than 90% school doesn't have any ground. How we are expecting girls to participate in sports? School grounds, Yes. so that girls can increasingly be part of sports as a means to mainstream them. One question to you, Dr. Ghazali here. Thank you, ma'am. Dr. Ghazali, आप बहुत लंबे समय तक यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं on issues of immunization, WASH and other child rights issues. How do you think we can increase the media coverage on these issues of children, gender and health? सोनिया, इसमें दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट हैं। पहली चीज़ ये है कि डिमांड क्रिएट करना है, क्योंकि जो मीडिया में ज़्यादा वक्त पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है। डेवलपमेंट स्टोरी के लिए स्पेस कम होता है। तो हमें मीडिया हाउसेस के लोगों से भी ये बात करनी पड़ेगी, और बीच में हम लोगों ने उस तरह की वर्कशॉप्स भी की हैं कि डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनके यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। स्पेस क्रिएट होगा तो सक्सेस स्टोरीज़ उसमें आ सकती हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जब डिमांड क्रिएट होगी तो तभी उनको एजुकेट करना आसान होगा, और एजुकेट करेंगे तो फिर सेलिब्रेट कर पाएंगे उन प्रतिभाओं को जिनको पंख मिले हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। और उर्दू मीडिया की जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि अगर उनको मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, उनको स्टोरीज़ आप बता दीजिए, तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर उनके पास में मटेरियल फीडिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर उनके लिए टेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पीछे यूनिसेफ के साथ मिलकर, जैसे संगवारी खबरिया का एक सिलसिला आपने शुरू किया था छत्तीसगढ़ में, इस तरह और कई एरियाज़ में जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए गए, उसने समाज की दशा और दिशा को बदलने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स अपने लेवल पे बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, और मीडिया के स्टूडेंट छोटी छोटी क्लिप बनाकर, छोटी छोटी अपनी स्टोरीज बनाकर डाल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा 2-3 लड़कियां निशानेबाजी में आगे आई हैं, उनकी स्टोरीज़ काफ़ी पिकअप हुई।
तो ये भी स्टोरी आ सकती है कि मेरे शहर से कितनी लड़कियों ने जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया। जब ये बात आती है तो और मोटिवेशन आता है और लोगों को लगता है कि नहीं, इस पे और ज़रा थोड़ी बात होनी चाहिए। या निज़ामुद्दीन की झुग्गियों से एक बच्ची उठ कर के और वो आईएएस बन जाती है, जबकि उसका बाप रिक्शा चलाता था और उसकी माँ दूसरे घरों में बर्तन मांजती थी। तो आप जैसे संस्थाओं ने जब उसको सपोर्ट किया लड़की को, तो उसकी वो प्रतिभा सामने आई और उसने कुछ करके दिखाया। तो हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हमारे यहाँ दिमाग भी बहुत है, बस उनको थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और यहाँ पे मीडिया स्टूडेंट्स बैठी हैं और मैं ये मीडिया स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमें कोई भी वीडियो, कोई भी आर्टिकल्स आपसे नहीं मिला अभी तक। हम और वेट कर रहे हैं कि आप हमें बना के भेजें ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। मिस जाफरीन चौधरी जी हमारे साथ हैं। एक ऐलान कर देता हूँ जी। कि आप में से जिसकी स्टोरी अच्छी होगी उसको मेरी तरफ से इनाम होगा। और जाफरीन चौधरी जी हमारे साथ हैं, वो एक क्वेश्चन डॉक्टर अमीना तहसीन को पूछना चाहते हैं। जाफरीन जी। जी। Not exactly a question, but I want to bounce something off you that have been working in my mind. So, Pankaj ji mentioned Priyanka Chopra's visit last week. So I was there in Lucknow with her, and we visited the Lalpur school, primary school. And in the STEM class, there is these girls they have many different, things that they have invented. And this girl was showing, one of the girls was showing a shoe for the blind. It was very, extremely amazing. She followed some YouTubes, but her main motivation was her friend was, a blind friend of her was using the white stick, and she didn't like using it. She did not want to be, even for the unknown people, she didn't want to appear helpless. She felt there is some stigma with the white stick. And this girl has made these shoes which will help the blind people to take scan the environment. And if there is an obstacle, they will help the blind person to take another course. It is, the most amazing thing I have seen. I have advised her that you patent your, this thing as soon as possible, because, you're showing to everyone. But the fact remains, I know that the numbers, are not probably in favor, as you said, 90% or more. There's no playground, there's not much opportunities. And then in the stories that we did for World Child Rights Week and World Children's Day, we have seen that how the girls, despite many obstacles, the mother is helping, somebody is helping, and they're, playing the non-traditional games and really, making it. These stories of deviance, how can we use those to really, inspire, to spread the fire, the enthusiasm, and the inspiration? Is there a way that, if we go by numbers and gradually increase, it is going to be an impossible amount of time? But how to accelerate things for which can transform? That was an idea. It's not exactly a yes no question I wanted to ask, but I really wanted to express and get your ideas on these. How can we use these deviants to really accelerate? जी, ये जो आपने आइडिया की बात की, मैम, मैं इसके लिए दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि ये जो जेंडर हम ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं नाउ, राइट, टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर जेंडर इश्यूज,
इसके लिए हम मैं अपने ही डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगी कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली एज ए एजुकेशनिस्ट। आई एम टेलिंग यू कि हम जेंडर स्टडीज अंडरस्टैंडिंग जेंडर का एक पेपर हमने ग्रेजुएशन में भी इंट्रोड्यूस किया है टू चेंज देयर माइंडसेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी एसेंशियल। दूसरा, हमने मास्टर्स में भी एक पेपर हम जेंडर व्हाट इज़ जेंडर और अंडरस्टैंडिंग जेंडर के नाम से हम यूजी एंड पीजी दोनों में हमने ये ऑफ़र किया है और इसका बहुत ज़बरदस्त चेंज हम देख रहे हैं। वन थिंग, ये हम करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। MA विमेन स्टडीज़ एंड PhD तो इज़ देयर। उससे हटकर हमने पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये अंडरस्टैंडिंग जेंडर का एक पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, हम बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत कर रहे हैं। कंटिन्यूसली हम पोस्टर एग्जीबिशंस या ऐसे राइटिंग्स टू इन्वॉल्व मेन एंड women or male and female students in that particular gender sensitization programs. In that only I introduced capacity building program as well. इन दैट प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसे आइकॉन जो बहुत स्ट्रगल के बाद में सक्सेस तक आते हैं, तो ड्रीम टू सक्सेस का एक मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, विमेंस जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। तो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसी लड़कियां जो बहुत स्ट्रगल के बाद स्पोर्ट्स में आ रही हैं या अदर फील्ड्स में जा रही हैं, इनको भी हम यहाँ पर लाते हैं, स्कूल में ले जाते हैं। स्कूल में भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। अदरवाइज हम जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए लाइक आई सेड के कॉम्पिटिशन्स हैं या ग्रुप डिस्कशंस स्पेशली, तो ये एक तरह का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के तौर पर कि कैसे हम इनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज। और बहुत प्राउडली मैं ये कह सकती हूँ कि जो चेंजेस हम 5-7 साल पहले नहीं फील करते थे, आज हम बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पार्ट लेने वाले, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे वांट टू स्पीक नाउ ऑन जेंडर इश्यूज, सर्टेन इश्यूज पे वो बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का साथ दें। तो लाइक द सेम व्हाट वी आर डूइंग कि हम 2 मेथड्स लेकर चल रहे हैं, एक करिकुलम, दूसरा बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज़। द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग ऑन स्कूल लेवल भी हम वो अप्लाई कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम ये करते हैं। तो इन दोनों का बहुत बड़ा चेंज हमको नज़र आता है। द थर्ड थिंग, व्हेन वी आर हम उर्दू मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उर्दू मीडिया की जो हिस्ट्री है, उर्दू मीडिया की हिस्ट्री को अगर देखें तो विमेन जर्नलिज्म का भी अपना एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तब से जेंडर डिस्कोर्स शुरू हो गया था उर्दू मीडिया में। बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स थे और उस वक्त वेदर इट इज़ पॉलीगैमी है, पर्दा सिस्टम है या पर्सनल राइट्स हैं, इस पर बहुत ज़बरदस्त डिस्कोर्स शुरू हुआ था। आज हम प्रिंट मीडिया से निकलकर जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो उर्दू स्पेशली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन द सेंस जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने में विद इन द इंडिया। क्योंकि जब हम गीत की, संगीत की, गज़ल की बात करते हैं तो उर्दू तो सबको इम्प्रेस करती है। तो मैं ये तमाम, चूँकि ये इस पैनल में बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं और इतने बड़े मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उर्दू मीडिया को ज़रूर ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का हिस्सा बनाएं और इसको बहुत ज़्यादा इसमें करें। नो डाउट उर्दू मीडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये एक स्पेशल फैक्टर उसमें इंट्रोड्यूस करना एंड रेगुलरली उसके लिए काम करना, मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट बट वी कैन डू इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करता हूँ जी, कि हमने उर्दू मीडिया को सेंसिटाइज करने के लिए 12 से ज़्यादा वर्कशॉप्स की हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले उर्दू पेपर्स में हेल्थ कॉलम नहीं आते थे, जी, जी, लेकिन अभी डेडिकेटेड एक पेज भी आने लगा है। कई अखबारों ने यूनिसेफ की कोशिश से अपने अखबार में एक पूरा पेज हफ्ते में एक दिन हेल्थ को देना शुरू किया।
तो ये एक बड़ा सक्सेस है। लेकिन इतने बड़े से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हेल्थ स्टोरी जब तक फ्रंट पेज पे नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, सॉरी एक बात करके मैं, दूसरी बात, बच्चों के जो रिसाले हैं उर्दू में, इनमें जैसे अब मेंस्ट्रुएशन के इश्यूज इतने हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, न्यूट्रिशन के इतने इश्यूज हैं, इस पर बात कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। तो हम उर्दू मीडिया के लोगों को इस पर भी हमें गौर करना है कि ऐसे इश्यूज जिस पे हम बात करना नहीं चाहते, अब तो वक्त गया, अब तो बात करना है। हमारी लड़कियों को, लड़कों को ये तमाम नॉलेज देना बेहद ज़रूरी है, तो हमें उस तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Zafreen, I will now ask a question, and we are also joined by Alka Gupta, Communication Specialist, UNICEF. She is also online. So, next question to Pankaj ji is that how do you think we can get children's opinion more in the media? Firstly, does the opinion of children matter? And secondly, how do we get them more into media and make them part of the story from a child rights perspective? चिल्ड्रन का जो पर्सपेक्टिव है बच्चों का, वो मीडिया में कितना ज़्यादा मैटर करता है, उसकी कितनी ज़रूरत है, ये आपको सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट से मालूम पड़ जाएगा जिसे आप हर 2 मिनट बाद देखते हैं, और वो एडवर्टीजमेंट है अमूल दूध पीता है इंडिया। कोई भी चैनल खोल लीजिए, कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, न्यूज़ का चैनल हो, स्पोर्ट्स का चैनल हो, इंटरनेशनल चैनल हो, कोई भी चैनल हो, ये आपको दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सारे बच्चे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो आपके 2-3 इशू जो हैं, आपके जेंडर का इशू है, लड़कियां उसमें हैं, खेल रही हैं, तंदुरुस्त हैं। तो अमूल दूध पीता है इंडिया का मतलब ये हुआ कि बच्चों की, क्योंकि आपको वो मार्केट है इतना बड़ा। हिंदुस्तान की मीडियन एज इस समय 27 साल के आसपास है। अगले सालों में हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा यंग देश बनने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जो हैं, हालांकि रेट कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो तादाद है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और उनके लिए आप उनको स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा जो आगे चलकर होगा वो ये होगा कि वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका दिमाग अच्छा होगा, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी सेहत अच्छी होगी, वो खेल सकते हैं, चाहे वो लड़के हों और चाहे वो लड़कियां हों। तो एक तो आप पहले ये शुरू कर दीजिए कि अमूल दूध पीता है इंडिया की जगह अमूल दूध मांगता है इंडिया। एक पूरा कैंपेन इसी पे शुरू हो सकता है, गिवन द माइल न्यूट्रिशन फिगर्स इन आवर कंट्री, तो अमूल दूध मांगता है इंडिया। बच्चे बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी मार्केट की बात मैं यहीं पे लेके आता हूँ, क्योंकि चीज़ का उसका मार्केट है, इसलिए उनकी आवाज़ ज़रूरी है। आपको ध्यान पड़ेगा, कोई 10 साल पहले की बात है, हमने एक प्रोग्राम किया था छू लो आसमान, जो कि सिर्फ इसी के ऊपर बेसिस था, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो आगे क्या करना चाहते हैं, एंड दैट टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। आपके साथ ही किया था हमने जी। उसको अवार्ड भी मिला था कहीं यूनिसेफ वगैरह में। जब अवार्ड मिल गया तब अरे तुम्हें कोई तुम्हारे इसके प्रोग्राम को अवार्ड मिल गया। जर्नलिज्म में अवार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है अभी भी। तो उसको वो कहीं टोक्यो में अवार्ड मिल गया, सब मेरे पास आए कि यार तुम्हारे प्रोग्राम को अवार्ड मिल गया, क्या किया था तुमने? मैंने कहा हमने बच्चों के ऊपर प्रोग्राम किया था। एवरीवन वाज शॉक्ड कि बच्चों के प्रोग्राम पे आपको अवार्ड मिल सकता है। मैंने कहा वो इसलिए मिल गया कि पीपल वांट टू हियर देम। उसमें 10 बच्चों की हमने स्टोरी की थी। एक लड़की है वो पायलट बनना चाहती है, एक लड़का है वो फार्मूला 1 ड्राइवर बनना चाहता है, और इस तरह की स्टोरी। और फिर हमने उन बच्चों को बुला करके स्टूडियो में बाकायदा, आप समझ सकते हैं कि टेलीविज़न में कितना महंगा वो है, सबको उनके घरों से वहाँ से बुला करके स्टूडियो में उनसे बात की और उनसे कहा कि ये आप करना चाहते हैं। तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि उसके प्रोग्राम की टीआरपी भी बड़ी अच्छी आई थी। तो आपको टीआरपी भी अच्छी मिली, आपको एक सोशल मैसेज जो है वो भी आपने दिया, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और जो मार्केट कैसे बनेगा, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ यहाँ अपनी बात को। मार्केट कैसे बनेगा? मार्केट इसलिए बनेगा क्योंकि आपको एक अच्छी वर्क फोर्स की आगे चल के ज़रूरत है। सऊदी अरब में आप समझ लीजिए कि अगले 10 साल के अंदर औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा वर्क फोर्स में आने जा रहा है। और उसका कारण ये है कि मैं भी एक्सपो देखने गया था दुबई में। उनकी पूरी टीम आई हुई थी, उन्होंने वहाँ पर स्टडी की दुबई एक्सपो में कि उनको कितने वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। और जिन्होंने जब
दुबई में आकर उन्होंने देखा कि कितनी सारी लड़कियां जो हैं वो आपको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है हज़ारों, और वो काम करेंगी आगे चल के। उसके बाद में अभी मैंने किसी से बात की साहब से, सऊदी से अभी लौट के आए थे, मैंने कहा क्या हो रहा है वहाँ पे? बोलता है कि वहाँ तो बिल्कुल चेंज हो रहा है, वहाँ तो अब उन्होंने वो कर दिया है कि वो ड्राइविंग लाइसेंसेस जो हैं वो दे दिए गए हैं, और औरतें गाड़ी चला रही हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में औरतें वहाँ पर अब ये चीज़ें सीख रही हैं कि आपको कैसे इन्वॉल्व होना है वर्क फोर्स के अंदर। और ये बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर होने जा रही है सऊदी अरब में। अब आने वाले दिनों में आप इसे देख सकते हैं। छोटी सी बात अंत में, जो मिस चौधरी कह रही थी और आप भी कह रही थी, आगे बढ़ने के लिए हमको ज़माने के साथ साथ चलना पड़ेगा। उर्दू प्रेस है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब चीज़ें हैं। अब हमको आगे चलने के लिए ये देखना पड़ेगा। आपके यहाँ बहुत बड़ा सेंटर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। लड़कियों को आप घर से बाहर नहीं भेजना चाहते, लड़कियों को आप स्पोर्ट्स में डालना नहीं चाहते। इफ़ द गर्ल्स कैन डू कोडिंग टुडे, इफ़ ए 8-year-old child you teach them coding today, within the 10 years, believe you me, India is going to beat China, Japan, America and everyone in the world, because that's where the future is. हिंदुस्तान में अगर जो हम कहते हैं कि उर्दू मीडिया में रिवॉल्यूशन आएगा, वो कहाँ से आएगा? मुझे पक्का विश्वास है कि उर्दू मीडिया में रिवॉल्यूशन आएगा। श्रीनगर में कोई लड़का बैठा होगा, वो ऐप बनाएगा जिसमें कि उर्दू मीडिया को साधारण तरीके से किस तरह से उसे आप लिख सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को कैसे आप समझ सकते हैं। कोई कहीं पर बैठ के कोई लड़का या लड़की ऐप बनाएंगे और उससे उर्दू मीडिया में रिवॉल्यूशन आएगा। और उसकी शुरुआत हमें अभी करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फ़ोन पे जो बैठ के सेल्फी लेते रहते हैं और देखते रहते हैं, दो काम आपके लिए हैं। एक तो ये कि अमूल दूध मांगता है इंडिया, इसके ऊपर आप 35 सेकंड का एक स्पॉट बनाइए और वो भेज दीजिए इनको। और दूसरा ये कि बच्चों में ये टेक्नोलॉजी की आदत डालिए, साइंस की उसमें आदत डालिए। उन्हें बताइए कि आगे दुनिया कैसे बदलने वाली है। हम मेटावर्स में जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उनसे अभी ये कहेंगे कि तुम्हें फेसबुक में आगे चल के नौकरी मिलेगी, तब उनकी समझ में आ जाएगा। मेटावर्स जब आने वाला है और उसके बाद में सारा जर्नलिज्म चेंज होने वाला है। सारा हमारा जो मीडिया का है, आपके जो मैसेजिंग की जो आप बात करती हैं, की पॉइंट्स ये करना है, उसको लोगों को बताना है, जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के टेक्नोलॉजी जो है उससे डील करेगी। और उस टेक्नोलॉजी के प्रति हमें सावधान भी रहना चाहिए ताकि सेल्फी ज़्यादा लोग ना बनाएं। और दूसरा ये भी कि बताना चाहिए कि इसकी पावर कितनी है। और आगे चल के ये अगर कोडिंग और सोशल मीडिया हम लोग इस पर अच्छी तरह से बच्चों की पढ़ाई अभी से शुरू कर देते हैं, जैसे कि मीडिया की पढ़ाई वो बता रहे थे आज सुबह की, अब 10वीं 12वीं क्लास से शुरू हो गई है। इस सब की पढ़ाई अब अभी से शुरू कर देते हैं, उससे जेंडर पैरिटी भी आएगी, जो कि बहुत बड़ा हमारा एक गोल है। और उससे लोगों में ये भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनेगा कि ये एक मोटिवेशन है आगे चल के अपनी ज़िंदगी अच्छी जीने का। जी। और हमारा सबसे बड़ा वही है। टेक्नोलॉजी में आप चले जाइए, टेक्निकल लैंग्वेज में आप चले जाइए तो आप उसमें कहते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरह से वो जो टेम्परामेंट है वो चेंज उसको करना कैसे पड़ेगा। बदला वो जाए। टेम्परामेंट जो है वो टेक्नोलॉजी, इससे पहले कि टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाए, आप टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लीजिए और वो आने वाली पीढ़ी कर सकती है। यूनिसेफ को बाकायदा सीरियसली सोचना चाहिए कि आने वाले 20-25 साल के अंदर, जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं जो आज 8 साल के हैं, 10 साल में 18 साल के होंगे और तब वो एम्प्लॉयबल लेवल पे होंगे, कि उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कितनी पकड़ होगी, कितना वो समाज को दे सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अभी समझनी पड़ेंगी। और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके लिए भी हम बता सकते हैं। फिनलैंड में फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो फेक न्यूज़ प्रॉब्लम इज इन फिनलैंड, बिकॉज फ्रॉम क्लास 5th they start teaching kids that what is fake news and what is fake information which they are watching. जेन जी, हमें अभी से जेन जी के बारे में बात करनी पड़ेगी। जेन जी वो होती है जो 2000 के बाद में जो पैदा हुए हैं, 22 साल के अब हो गए हैं और उनके भी बच्चे होने वाले होंगे। और वो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से सोचना शुरू करें और उसी से सारी ये हमारी समस्याएं हैं। जेंडर पैरिटी की समस्या है, इम्यूनाइजेशन की समस्या है,
और हेल्थ अवेयरनेस की समस्या है, आप बात कर रही थी मेंस्ट्रुएशन और इस सब की, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, अभी तक पिछले साल तक वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो उनके हेल्थ ऐप है उसमें वो नहीं था। आप समझ सकते हैं, वो तो बहुत एडवांस लोग हैं ना। वो इसलिए नहीं था कि वहाँ जो लोग कोडिंग कर रहे हैं उसकी किसी की ये समझ में ही नहीं आया, क्योंकि सारे वो लड़के हैं, सारे टेक्नोलॉजी जितने भी IIT से हमारे और यहाँ से गए वो सब लड़के हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपने समझा नहीं, आपकी प्रॉब्लम पैसा बनाना है तो आप पैसा बनाना शुरू कर दीजिए। तो when women start coming into these technologies, when more and more of them are in this technology, these problems are going to get solved slowly but surely. Then women and adolescent girls issues come forward, and one of our programs, which is called the Yuva program, is addressing this issue of building technological skills of the youth. One more question, Rahul Srivastav ji bhi hain yahan pe, main पूछना चाहूँगी उनसे, Rahul ji, if you would like to give your opinion in terms of television में बच्चों के opinion, we just heard from Pankaj ji, television में आप बच्चों के opinion को कैसे integrate करते हैं, how and what kind of support do you think we can provide for integrating children's issues in your programs? Sonia, I think the child right issue is an issue which is so diverse and complex that I think the media has never woken up to it. There have been slew changes, because if you see opinion of a child, पिछले कुछ दिनों में तो आपको कर्नाटका का हिजाब वाला मामला एक glaring example है, जहाँ the child's opinion did not matter in the media coverage. Media coverage child rights पे episodic है. बहुत सारे changes हैं. आप UNICEF की principles and guidelines हैं on how to interview, 6 points हैं, 7 points का किस तरह से आप उनको present करेंगे. मेरे को नहीं लगता किसी मीडिया रूम में वो हिस्सा है लोगों के कॉन्शियसनेस का. इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस. आई टेल यू अ स्टोरी कि 15-16 जून 2004 मैं गोंडा में एक पॉलिटिकल इवेंट की स्टोरी करने गया था, और वहाँ मुझे पता लगा कि एक ग्रेट रोमन सर्कस है, वहाँ पे कुछ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट गए थे कुछ बंधुआ बच्चों को छुड़ाने के लिए, तो उन पे हमला हो रहा है. तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोगों को पीटा जा रहा था, एक्टिविस्ट को, और उनके ऊपर इनका जो उनका शेर का बाड़ा था उसको खोल दिया गया था कि वो भाग ना पाए. पुलिस को बुलाया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंडिफरेंट. मैं पुराना वहाँ का लखनऊ में रह चुका था, तो मेरे में इतना वो था कि मैंने SSP को बुला लिया और वो लोग बच गए, जान बच गए उनकी. 11 बच्चे छुड़ाए गए, और उस दिन नहीं तो उनको मार डाला गया होता. उनमें से एक सज्जन थे कैलाश सत्यार्थी जी. तो उस समय पे मैं वापस आया जिस दिन, तो वो खबर हमारे यहाँ जिस चैनल में थी, मैं पंकज जी भी हमारे साथ थे, वो उस चैनल में ही चली. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज वो नहीं चलती, क्योंकि 16 जून 15 जून को मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, और वो पूरा नया ड्रामा चल रहा था कांग्रेस के त्याग का और नई सरकार के बनने का. आज के हालात होते वो खबर नहीं चलती. आपने देखा होगा चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और जेंडर राइट्स की बात करने वाले टॉप एडिटर्स नहीं बन सकते. पंकज जी नहीं बन सकते. मैं एनवायरनमेंट और इन सब इश्यूज में इंटरेस्टेड था. मैं 2 साल मेन स्ट्रीम पत्रकारिता छोड़ के डाउन स्ट्रीम में डाउन टू अर्थ मैगजीन में चला गया. तो मुझे लोगों ने ये कहा था कि राहुल तुमने 2 साल खो दिए. चाइल्ड राइट की कोई बीट्स नहीं है. जेंडर इश्यूज पे जो रिपोर्टर्स आते हैं, मीडिया के बच्चे हैं, इनको पढ़ना चाहिए. यानी अगर आज यूनिसेफ की गाइडलाइंस इतनी एक्सप्लिसिट हैं, 93 से आ रही हैं, इतने सालों से छप रही हैं, मैं कहूँगा रिपोर्टर्स छोड़ दिए साहब, एडिटर्स को नहीं इल्म है कि वो क्या गाइडलाइंस है. NCPCR क्या करता है कुछ नहीं पता है. इस देश के टॉप नेताओं को बताना पड़ता है कि अगर एक दिल्ली में क्राइम हुआ है तो उसकी विक्टिम की फैमिली की पिक्चर्स ना छापी जाएं. दिस इज द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म एंड द कॉन्शियसनेस अबाउट दिस इश्यू. So there is Now, more need. Sorry? So there is more need for creating awareness. There is a amongst lot journalists of need. also. I think this whole TRP business, this eyeball business, takes away the attention from the key issues that plague our society. And what's wrong? Child rights, gender, ये हमारे कमरों का white elephant, ये कमरे का elephant है.
हम लोग फ्यूचर में सोच के क्या करेंगे ये सब नहीं, हमें इस कमरे में जो एलिफेंट है उसको एड्रेस करना होगा। चाइल्ड ओपिनियन क्रिटिकल है। 99% मैं देखता हूं, अगर हिसाब लगाया जाए, एक रिपोर्ट आई थी कि 39 to 45% जो कवरेज है हमारा मीडिया में ऑन चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रन मेंशन आता है, वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या क्राइम बाय चिल्ड्रन है, बस Eventful है, rather इवेंट, than एपिसोडिक opinions. एन इवेंट। Yes. नाउ यानी मैं बहुत जालिम बात बोलना चाहूंगा, कड़वी है, कि इस देश में करीब 22 करोड़ बच्चे 0 से 6 साल की उम्र के हैं। 17-18% बनते हैं इस देश के। क्या उस पर हम डिबेट ज्यादा देखते हैं कि 14% मुस्लिम्स हैं इस देश में और हिंदू मुसलमान की डिबेट ज्यादा देखते हैं? जिस दिन हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे कि हमारा सेगमेंट कौन सा बड़ा है और किसकी हमें जरूरत ज्यादा है, प्रायोरिटीज फिक्स कर लेंगे। और इसमें प्रायोरिटी सरकारें नहीं फिक्स करती, ना मीडिया फिक्स करता है, प्रायोरिटी जनता फिक्स करती है। द पब्लिक हैज टू बी टोल्ड दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल फॉर यू, लाइक पंकज टोल्ड देम वे बैक कि देयर इज फीमेल फेटिसाइड हैपनिंग इन दिस विलेज। जब तक पब्लिक अवेयरनेस को हम नहीं उठाएंगे उस लेवल तक, तब तक आवर प्रायोरिटीज इन मीडिया will always remain money. They always will remain money. They should remain money. But money at what cost? Yes, very important issues that you have highlighted. Thank you. And with this, we will go to the last question because we have overshot in terms of time. This is to Ms. Sumaira Khan again. You have heard and you have, it has been discussed a lot in this session, how in your channel, which is also in various languages, do you give agency and leadership and empower girls through your media platform? मुझसे बहुत सीनियर राहुल जी और पंकज जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत सी जो कमियाँ हैं उनको उजागर किया। और ये हकीकत है कि जितनी जगह मिलनी चाहिए, जो प्रोपोर्शन है विमेन का या चिल्ड्रन का, वो प्रोपोर्शन में आपको उनका रिप्रेजेंटेशन न्यूज़ में नहीं दिखाई देता है। बट मैं इसके आगे बढ़कर बात करना चाहूँगी कि ये हमारे पास है एक सिचुएशन जहाँ ये न्यूज़ चैनल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं तो शायद चाहूँगी भी नहीं कि वो न्यूज़ चैनल्स देखें, जिसमें मैं खुद काम करती हूँ वो भी मैं नहीं दिखाना चाहूँगी, बिकॉज मुझे फिर बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको। सो व्हाट आई वांट टू से इज़, बट ये सिचुएशन है तो इसके बाद आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? व्हाट आई फील इज़ दैट अब क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हम वो जेंडर इश्यूज़ की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलती है जगह। अगर निखत ज़रीन कुछ अच्छा करती हैं तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है, मीराबाई चानू की स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँची हैं और वो इंस्पिरेशनल है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत सी लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं उससे। लेकिन अब उतनी ही जगह है तो उसमें उतनी ही उनको जगह मिलती है। अब वो आपको फिर पूरा एक सिस्टम है जिसको पूरा बदलने की ज़रूरत है, और शायद उसमें बहुत वक्त लगे या उसमें फिर अपनी बहुत सी दिक्कतें हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है कि आपके पास और बहुत से मीन्स हैं, बहुत से ज़रिए हैं, बहुत से ज़राए जिनके ज़रिए हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर सकते हैं। आजकल तो आप कोई एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, वो विजुअली लोगों को पसंद आएगी, तो आपको उसके लिए न्यूज़ चैनल की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही वाइड स्प्रेड लोगों तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन हमें, जब हम मीडिया इंस्टीट्यूट में बैठे हैं या मास कॉम के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो गर्ल्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया स्टडीज़ में भी बढ़े, तो वो फिर फाइनली आगे जाकर न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़पेपर्स में उनकी तादाद बढ़ेगी। क्योंकि अभी भी न्यूज़ रूम्स में आप बहुत लॉपसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बराबरी है या वहाँ पर बड़ी पोजीशंस में आपको बहुत महिलाएं दिखाई देंगी, तो नहीं है वो। तो अभी बहुत ज़रूरत है कि और बड़ी तादाद में आए लड़कियाँ, और बड़ी तादाद में लड़कियाँ आकर, और हमारे न्यूज़ रूम्स तभी और डेमोक्रेटाइज हो सकते हैं तब जबकि वो रिप्रेजेंटेशन आपको उनकी तादाद में भी दिखाई दे।
मैं तो खुद अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैं मीडिया में आई तो इनिशियली शायद फैमिली को लगता था कि अच्छा सिर्फ लिखना है ना अखबार में जाके, मतलब 10 से 6 की नौकरी टाइप होगी तो वापस आ जाओगे तो वो अच्छा है। बट अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मीडिया में अगर ऑड आवर्स होंगे तो आप कैसे काम करेंगे, सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू, पीपल डोंट वांट टू सेंड देयर गर्ल्स इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया। अगर आप भेजेंगे ही नहीं, उनकी तादाद नहीं वहाँ होगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, न्यूज़ रूम के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और बहुत से और ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए हम वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं। वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, वी नीड टू प्रमोट गर्ल्स एंड वो क्या अचीव कर रही हैं, किस तरह के डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से आगे आ रही हैं। तो एजुकेट, प्रमोट एंड देन सेलिब्रेट। अगर हम सेलिब्रेशन तो ज़रूर दिखाई देता है हमें न्यूज़ चैनल्स में, जब कोई अचीवमेंट हो जाता है तो सेलिब्रेशन दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले का जो पार्ट है, वो जो एजुकेट करने वाला पार्ट है या जो प्रमोट करने वाला हिस्सा है, वो उतना नहीं दिखाई देता है। तो आई थिंक वो शायद डिजिटल मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या न्यू मीडिया के ज़रिए आई थिंक ज़्यादा किया जा सकता है, और वो एक ऑप्शन है हमारे सामने। Yes. ये बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, अभी जो सारा डिस्कशन हुआ इसमें जो चीज़ बहुत खुल कर आई है ये कि मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और वे फॉरवर्ड देखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये बात ज़रूरी है। ओनली वन थिंग आई वांट टू ऐड कि जब हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं या जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम्स या न्यूज़ कवरेज की बात करते हैं, तो जिस मेरा एक सवाल ये भी है, जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हैं वो क्या सिलेबस करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है? क्योंकि जब हम फ्यूचर के जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहीं से उनमें वो सेंसिटिविटी हो तो फिर उस लेंस से वो देख सकते हैं। तो जो जर्नलिज्म के कोर्स चल रहे हैं इसमें किस हद तक वो जेंडर सेंसिटिविटी को हिस्सा बनाया गया, ये बहुत, चूँकि जो 2 साल कंप्लीट करते हैं मास्टर्स के, तो उन 2 सालों में उनका माइंडसेट बहुत अच्छे से बन सकता है। राहुल जी ने कही जी। कि मालूम नहीं है एडिटर्स को एनसीपीसीआर क्या होता है, यूनिसेफ की गाइडलाइंस क्या हैं चाइल्ड रिपोर्टिंग की। तो इसी के लिए हमने बाकायदा ये जो प्रोग्राम है क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स वाला, इसके बारे में सीरियसली ये काम चल रहा है कि ज़्यादातर जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं जो पढ़ा रहे हैं और जो न्यूज़ रूम्स हैं उनमें ज़्यादातर लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें कि उनको सेंसिटिव किया जाए इसके बारे में। ये जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये सेंसिटिविटी कैसे इसमें आ सकती है। और बड़ी मैं अभी बात ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमको अप्रोच कर रही हैं। जब सोनिया जी को जाने कितने लोग करते होंगे, मुझे करने लगे हैं कि साहब आपने वहाँ ये पढ़ाया था, हमारे यहाँ भी आके पढ़ा दीजिए। लेकिन यूनिसेफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू इट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whose job is this to regulate education at higher level, they have to step up. द्विवेदी जी आज आए थे, उन्होंने IMC में बहुत अच्छा काम किया है। तो हाँ, तो कैश को लेकर के क्रिटिकल अप्रेजल जो एनालिसिस है सब के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मैं बात इसको दोहराऊंगा, पहले भी मैंने ये बात कही थी कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लेवल पर और ये उठना चाहिए कि कैसे हम कम से कम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मीडिया पढ़ा रहे हैं उनमें कम से कम इस कोर्स को एक सिलेबस का पार्ट बना सकें कि आप कम से कम 3 दिन के दें अपने 1 साल में, 1.5 साल में जो भी आपका कोर्स है, कि इसमें ये दें ताकि ये चीज़ें उन्हें पढ़ाई जा सकें। और ये चीज़ें फिर जब एडिटर बन जाएंगे राहुल जी जैसे, तब उनको याद रहेंगी कि हमने ये कोर्स में पढ़ा था कि भाई ये यूनिसेफ की गाइडलाइंस हैं या ये एनसीपीसीआर का ये उसमें वो है। और मौजूदा न्यूज़ रूम्स और मौजूदा न्यूज़ रूम्स को मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कोई 7-8 रेजिडेंट एडिटर से हमारी बात हुई हाल में देहरादून में, और अमर उजाला के, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अमर उजाला अखबार जो है यहाँ पर इतना नहीं है, नॉर्थ इंडिया में है, हाँ, ट्रिब्यून और अमर उजाला के 8-10 वहाँ पर एडिटर्स थे जिनसे कि ये बात हुई, और वो सब बड़े खुश होकर वापस गए कि हम हमारी समझ में ये बात आ गई है एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन देयर न्यूज़ रूम्स, और उससे वो कवरेज धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बात सोनिया मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि हम इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं।
तो बच्चों का जो राइट है उसमें उनकी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ज़िंदगी से उनका हक शुरू हो जाता है और उस हक में उनका इम्यूनाइजेशन भी शामिल है। तो कोविड के दौरान एक चीज़ आई कि फेक न्यूज़ ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो क्रैश कोर्स था इसको हमने जितने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी उसकी वजह से फेक न्यूज़ को काउंटर करने में बहुत मदद मिली और वो पूरी मुहिम जो टीकाकरण की थी उस तक लोग पहुंचने लगे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और फेक न्यूज़ बहुत थी। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर हम बच्चों के अधिकार को उनके माँ बाप तक मीडिया के ज़रिए पहुंचा दें तो वो अपना एक वक्त का काम छोड़ देंगे, लेकिन वो टीका ज़रूर लगवाएंगे, क्योंकि आगे उनको 2 दिन की दिहाड़ी नहीं छोड़नी पड़ेगी अगर उनका बच्चा आज सुरक्षित हो जाएगा। तो ये जब तक हम नहीं बताएंगे कि उनका फ़ायदा इसमें किस तरह से है, तब तक वो इसका ख्याल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो जेंडर इनइक्वलिटी का इशू है उसमें भी वालिदैन को, बच्चों को इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पार्टनर की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक लोगों को पार्टनर्स की इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी तब तक ये मसला भी हल नहीं होगा। पुराने ज़माने में ख़वातीन बाद में खाना खाती थीं और उनके अंदर दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थीं। आज वो ज़माना बदल रहा है, तो ज़माने के साथ चलने के लिए ये ज़रूरी है कि जो परिवार है वो परिवार उस तरह से चले जिस तरह उसका आने वाले दिनों में ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वो जब तक हम जोड़ करके मीडिया के लोग ये नहीं बताएंगे तब तक, क्योंकि आदमी जो है वो सेल्फिश है, अपना फ़ायदा देखता है, तो जब तक फ़ायदा उसको नहीं समझ आएगा तब तक इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में दिक्कत तो उतना आएगी। स्पेस नहीं देंगे। करेक्ट। एंड वन लास्ट वर्ड फ्रॉम मिसेस शाहिरा नाइम, जो यहाँ पे हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट विद ट्रिब्यून। यू वांट टू स्पीक मैम, फ्यू वर्ड्स यहाँ। Yeah, I would like to add a few words because जर्नलिज्म में रहते ही रहते मैंने जेंडर पे बहुत लिखा, उस तरह इतना लिखा भी नहीं जाता था, लेकिन अभी फॉर द लास्ट 15-20 इयर्स मैं लखनऊ में हूँ और हम लोग ने जेंडर पे ही ज़्यादा काम किया है, ख़ास करके डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, इस पे बहुत एक NGO है। तो जैसा पंकज ने कहा 3 दिन का, हमें लगता है कि वो काफ़ी नहीं है। हमें एक एक शोबे के लिए एक जेंडर के हिसाब से एक उसको रीराइट करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा ना, वो नाकाफ़ी है। एवरी एस्पेक्ट, मतलब जो आप NFHS लोगों ने उसको एक अलग से जेंडर को इशू बनाया, वो जेंडर अलग से इशू नहीं है, वो जेंडर एक लेंस है जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं उसका असर पड़ता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे। अभी हाल में हम लोग ने एक सेफ्टी ऑडिट किया, ये लड़कियों से ही कराया, जो बस्तियों की लड़कियां, जहाँ जो अर्बन स्लम्स की, कि आपको कहाँ पे आप सेफ़ महसूस करते हैं, कहाँ आप किन अपनी बस्ती में कौन से इलाके में आपको डर लगता है या वायलेंस का वो होता है। तो उसमें FGDs और बहुत अलग अलग किस्म से वो हुआ। तो जब वायलेंस की बात हो रही थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही थी, उन लोगों ने कहा नहीं, ये सब तो होता ही नहीं है, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। उसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया गया है छेड़छाड़ को, या उसको छेड़छाड़ बोलते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है ही नहीं, टू द एक्सटेंट कि इवन रेप इज ऑफन नॉट सीन एज अ क्रिमिनल एक्ट एंड द कोर्ट इवन सेज कि यू गो एंड मैरी द रेपिस्ट। तो ये सारी बातें तभी मुमकिन हो सकती हैं, उसी सोसाइटी में मुमकिन हो सकती हैं जहाँ के ये सारी चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है और जहाँ इसके लिए एहतजाज करने की भी ज़बान नहीं है। वो लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे इसके ऊपर एहतजाज करें। ये पूरा सर्वे हुआ, उसके एंड में एक लड़की ने एक किस्सा सुनाया, किसी मोहल्ले में किसी ने उसके साथ मोलेस्टेशन किया, पड़ोसियों ने किया,
चाय की दुकान, बीड़ी की दुकान, मतलब दे डिड नॉट इवन नो दैट दिस वाज समथिंग, इट वाज सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये जो है, जो इस तरह से जो नॉर्मलाइज करने का जो कल्चर हम लोगों के यहाँ हो गया है, और ओनली जब एक्सट्रीम हो जाता है, हाथरस हो जाता है या उन्नाव हो जाता है कि पूरी दुनिया जो है खड़ी हो जाती है एज इफ इट समथिंग न्यू हैज़ हैपेंड, बट इट इज़ हैपनिंग डे इन डे आउट इन एवरी मोहल्ला। तो हमारा कहने का सिर्फ यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो ये जेंडर है, ये सिर्फ एक उसमें ना रखा जाए, ये लोगों को मतलब ये बिल्कुल बचपन से ही टू सी कि क्या है वायलेंस, क्या है आपके राइट्स, क्यों। अब स्पोर्ट्स की बात हो रही है, जहाँ 85% अनीमिया है, क्या ताकत रहती है लड़कियों को कि जो खेलेंगी, खाने को नहीं मिल रहा है, अभी भी खाने में वो न्यूट्रिशन में नहीं। पैंडमिक के बाद तो जो हालत हुई है, पैंडमिक के आप अभी अगर आप वो देखिए कि जो खाना है जो श्रिंक हो गया है, तो किसको कितना मिल रहा है। तो अगेन वी आर एट द सेम पॉइंट, लड़कियों ने ड्रॉप आउट किया, लड़कियों की अर्ली फोर्स्ड मैरिजेस पैंडमिक के बाद शुरू हुई हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत कई इंटरवेंशंस निकाले हैं, बल्कि आई विल लाइक टू एंड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि हम लोगों ने जब ये देखा कि लड़कियां बस्ती में उन लोगों की जल्दी शादी कर दी जा रही है, क्योंकि माँ बाप को पैसा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने का है, तो जाहिर सी बात है लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को घर में बैठा देंगे, उसकी शादी ढूंढेंगे। हम लोगों ने डोनेशंस जमा करके लड़कियों की फ़ीस जमा की, उसके बाद फिर और कोई अच्छे लोग आए, पैसे हम लोगों को कुछ मिले, तो उन लोगों की हम लोगों ने स्कूटी ट्रेनिंग कराई है। अराउंड अभी 3 बैच हो चुके हैं, और वो स्कूटी ट्रेनिंग करा के उनको ई-कॉमर्स से हम लोगों ने जोड़ दिया। सो दिस फर्स्ट लॉट ऑफ यंग गर्ल्स डिलीवरी पर्सनल, ये सब क्योंकि यही सेक्टर ग्रो किया पैंडमिक में, तो ये सारी लड़कियां लखनऊ में जो हैं ये ई-कॉमर्स सेक्टर से हम लोगों ने जोड़ा है। उससे पहले भी वायलेंस सर्वाइवर्स को हम लोग ने ई-रिक्शा ट्रेनिंग दे करके तो फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन बाय वायलेंस सर्वाइवर्स फॉर वुमेन ये शुरू किया है। तो ये हम लोग ये जो है ये बिल्कुल ऑनगोइंग काम है, और इसमें बहुत जूझने की सबको ज़रूरत है। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जी शुक्रिया। Very nice. And with this, I would like to request Professor Ehtesham to close this panel discussion, which has been extremely rich on the issue of child rights and gender and sports. एहतेशाम भाई की बात से पहले एक शाहीन बाग में एक तजुर्बा हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं, और दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस। लोगों ने तय किया कि जिनके पास में थोड़े साधन हैं, तो उनके अगर 2 बच्चे हैं तो ये कहा उनसे कि आप ये मानिए आपके 3 बच्चे हैं, और एक बच्चे को गोद ले लीजिए और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप उठा लीजिए। तो ऐसे तकरीबन 100 बच्चों की जिम्मेदारी लोग उठा रहे हैं। तो इस तरह के मोहल्लों में भी अगर इनिशिएटिव शुरू हो जाए तो ये एक बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इसको कामयाब बनाने के लिए। आई वंस अगेन thankful to Mr. Pankaj Pachori Sahab, who is Editor-in-Chief, Go News, and former media advisor to Government of India. He is always associated with CAS program of UNICEF and other workshops, and our students are getting benefits since 2018, and they are working they have just started writing on health issues, and I hope that they will help the society in future. I also thankful to Madam Farhat Rizvi ma'am, who is a senior journalist and General Secretary, Progressive Writers Association. Then we have Mr. Rahul Srivastava, who is editor, Headlines Today, New Delhi. I am also thankful to you, sir. And then Madam Sumaira Khan, who is senior TV anchor, TV9 Bharatvarsh, and Dr. M.H. Ghazali Sahab, who is editor, UNN, New Delhi.
And last but not the least, Dr. Amina Kishore, who is the head of our school Department of Women Studies, who is also now going to associate this UNICEF organization to raise and the gender discourse through media. And I hope that Manu and Department of Women Education will do some concrete things where the gender discourse may be discussed and appropriate action may be taken to solve this problem. Today we have Ma'am Jafreen Chaudhary ma'am, whose help we have organized all this program and earlier so many programs. Ma'am, I am thankful to you, and our university is sincerely extend its sincere thanks for giving this opportunity to have this type of discourse in the university campus where Urdu students are being taught, and they are from the community which are not aware much about the media issues, child rights, gender issues. So this type of workshop which is being provided by UNICEF is going to help the society and marginalized section in a proper and you can say with meaningful results. And you will see the results in future where our students maybe contribute after getting so much workshop and other experts insights given by many eminent personalities from media. And I am also thankful to all the guests, all the audience who have been there, Mr. Shiranjoy Chaudhary Sahab, who has come from Delhi to show to have this quiz show on sports. And this is a new thing for us and also for the students. We have learned a lot, sir. And ma'am, all the staff of the UNICEF, and Mr. Suren Dalita sir, who is always working very hard in shaping the overall agenda for this workshop. And once again, Mr. Pramod Kumar from IMC, New Delhi, who is also here. And yeah, I hope that IMC is also having a CAS program with UNICEF. And ma'am is kind enough to to have more association with DG sir in future also. Thank you so much. Okay, so, and one Alka ma'am has joined who is live on this show. I am also thankful to her. And anybody, if I left any name, please pardon me, because I have a lot of stress. Then I'm not able to, I have missed so many things, I think. But next time this will be taken care of. Thank you.